एलआईसी नेपालको 24औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। बुधबार जावलाखेलमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रत्नाकर पटनायकको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको हो। कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण तथा लाभांश वितरण लगायतका विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। सभाले चुक्ता पुँजी 5 अर्ब 50 करोड रुपैयाँको 21.0526% का दरले करसहित नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। जसअनुसार 20% नगद लाभांश बापत 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ र 1.0526% कर प्रयोजनका लागि 5 करोड 78 लाख 84 हजार रुपैयाँ गरी कुल 1 अर्ब 15 करोड 78 लाख 84 हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। यसैबीच सभाले लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। सभामा कम्पनीको काठमाडौँ शाखामा कार्यरत टिओटी पूर्णबहादुर खड्का, हेटौँडा शाखामा कार्यरत टिओटी रामकुमार अधिकारी र काठमाडौँ नक्साल शाखाका ब्रान्च म्यानेजर अङ्कित सुवेदीलाई सम्मान पनि गरेको छ। In 24-25. This year holds special significance for us as we proudly enter our 25th year of operations. Reaching this milestone is a moment of pride for the company and a testament to the trust, support and confidence of our policyholders, shareholders, employees and every stakeholder. The past few years were marked by significant challenges in the global economy, characterized by weaker medium-term growth, rising commodity prices, reduced investment and disruption resulting from geopolitical situations. These factors collectively contributed to economic weakness in Nepal's economy. Amid the challenging conditions in the insurance industry, our company performed reasonably well across most of the financial parameters. Our consistent focus on financial discipline, customer confidence and regulatory compliance has enabled us to deliver sustainable value to all stakeholders. The Director's Report and the consolidated audited financial statements for the financial year 2024-25 have already been shared with you, and with your permission, I take them as read. Against the background, I would like to present a synopsis of the company's performance during the fiscal year 2024-25. I am pleased to report that despite a tangible economic crisis that hit the country throughout the year, the company was able to sustain its positive trend of growth in business with the unwavering dedication of the field force and staff members. In 2024-25, our net profit stands at Nepali rupee 837.33 million, which was Nepali rupees 829.61 million in 2023-24. Despite the challenges and complying with all the instructions of our regulators, the financial strength of our company gradually increased, having the total assets standing at Nepali rupees 1,45,826.77 million in 2024-25 against Nepali rupee 1,28,381.34 million in the 2023-24. It is again my pleasure to report to you that LIC Nepal Limited has been able to collect total premium of Nepali rupee 19,938.31 million including renewal premium of Nepali rupee 16,900.11 million. On both this count, the company has given the highest ever performance since its inception on 1st September 2001. On new business counts, company collected Nepali rupee 3038.19 million as first year premium income by selling 64,867 policies in the financial year 2024-25. In terms of first year premium collected and number of policies sold, the company has shown growth of 16.64% and negative variance of 0.98% respectively. Similarly, in the year 2024-25, life fund of the company has grown to new heights of Nepali rupees
1,32,639.70 million. There has been growth of 11.25% in Life Fund, while the total investments have increased by 16.99% in the year to reach Nepali rupee 1,17,340.40 million. The income from investments in the year 2024-25 was Nepali rupee 9767.6 million, which has shown growth of 4.47%. All the funds have been invested in Nepal as per the guidelines set by the Nepal Insurance Academy, and efforts are being made to get the maximum advantage of higher returns on investments from the market so that same can be channelized to our policyholders. अध्यक्षद्वारा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82 प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्ने। यहाँहरू समक्ष पेश गरिएको उक्त प्रस्तावलाई ताली बजाएर पारित गरिदिन हार्दिक धन्यवाद। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गर्दछु। त्यसैगरी दोस्रोमा रहेको छ लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित 2082 आषाढ मसान्तसम्मको वासला र अब 2081-82 को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणमाथि छलफल गरी पारित गर्ने। यहाँहरू समक्ष पेश गरिएको उक्त प्रस्तावलाई ताली बजाएर पारित गरिदिन हार्दिक धन्यवाद। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गर्दछु। लेखा परीक्षण त्यसैगरी तेस्रोमा रहेको छ लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 111 बमोजिम यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2082-83 को लेखा परीक्षण गर्नको लागि लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम श्री केजे एसोसिएटलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु 15 लाख पारिश्रमिक निर्धारण गरी लेखा परीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिमा छलफल भई सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएकोले सो प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन म सम्मानित शेयरधारी महानुभावलाई हार्दिक अनुरोध धन्यवाद। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गर्दछु। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा रहेको छ सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पुँजी 5,50 करोडको 21.0526%, 20% नगद लाभांश 1,10 करोड र 1.0526% कर सम्प्रयोजनको लागि 5,78,94,737 गरेर कुल 1,15,78,94,737 नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने। धन्यवाद। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब पाँचौं नम्बरमा रहेको छ साधारण प्रस्तावतर्फ सञ्चालकहरूको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने। संस्थापक शेयरधारी भारतीय जीवन बीमा निगमले सिफारिस गरे बमोजिम श्री परमेन्द्र हरिज्यू यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति हुनुभएको छ। त्यसैगरी संस्थापक शेयरधारी विशाल ग्रुप लिमिटेडबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सञ्चालक श्री अशोक कुमार अग्रवालज्यूको रिक्त स्थानमा नियुक्त हुनुभएका सञ्चालक श्री विशाल अग्रवाल सर नियुक्ति हुनुभएको छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र सञ्चालक श्री प्रवीण कुमार मोलरीको कार्यकाल समाप्त भई रिक्त रहेको स्थानमा श्रीमती शुभाङ्गी सुमन स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरू तीनैजनाको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। युक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। त्यसैगरी अब म विशेष प्रस्ताव पेश गर्नेछु। विशेष प्रस्ताव 1 नम्बरमा छ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने। सञ्चालक समितिका अध्यक्षको बैठक भत्ता साबिकको रु 18,000बाट रु 35,000 वृद्धि गर्ने। त्यसैगरी अन्य सञ्चालक सदस्यहरूको बैठक भत्ता 15,000बाट 30,000 वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने। यहाँहरू समक्ष पेश गरिएको प्रस्तावलाई ताली बजाएर पारित गरिदिन आग्रह। धन्यवाद। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गर्दछु। दोस्रो नम्बरमा छ कम्पनी ऐन 2063 को दफा 105(1) बमोजिम आर्थिक वर्ष 2081-82 मा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएको खर्चको अनुमोदन गर्ने। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2081-82 मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु 31 लाख सहयोग प्रदान गरेको थियो। युक्त प्रस्तावलाई ताली बजाएर पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गर्दछु।
नेपाल की जनता के लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना, लाइक लास्ट ईयर, दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू लॉन्च एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये एक हमारा स्ट्रेटजी का प्राप्त है। दूसरा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने कंसिडर किया है कि जो भी पेमेंट होंगे वो थ्रू डिजिटल होंगे, अकाउंट में ही जाएंगे, तो उस पर हमारी कंपनी 100% उसको फॉलो करती है। सारे पेमेंट जितने भी हैं, सरेंडर के, मैच्योरिटी के, डेथ क्लेम के, वो सारे सब कुछ अकाउंट में जा रहे हैं। और बार बार इसमें हमने भी 4 स्ट्रेटजी ये लिया है कि पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, जिनका हमारे पास अकाउंट डिटेल्स नहीं आता है उनको इंडिविजुअल SMS जाता है, फिर हमारे ब्रांच ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस से उनको कॉल जाता है। इस हिसाब से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट जो है बिल्कुल ही स्मूथ रहे। वी आर द लार्जेस्ट ग्लोबली 4th इसलिए LIC इंडिया है कि सबसे ज़्यादा पेमेंट ये करती है, तो हम लोग पेमेंट को बहुत ही स्मूथ ढंग से करते हैं और टाइमली करना चाहते हैं और करते भी रहे हैं। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन है, अभी नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी ने बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग के पास ओपन किया है, हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं। हमारा अर्लियर ट्रस्ट FDs पे था, अब FDs पे रेट्स इतने कम हो गए हैं कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें नॉर्मल कैश फ्लो बना रहता है, और कैश फ्लो के कारण जो है हम पेमेंट जो है आने वाले पेमेंट लायबिलिटी जो भी होती है उसको हम लोग स्मूथ ढंग से पेमेंट करते हैं। तब भी वी आर एग्जामिनिंग, और हम लोग धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को, जो भी सही इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लगेगा, और उसको हम लोग करते हैं। और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कमेटी है जो सारा डिसीजन लेती है, और ये डिसीजन जो भी हम लोग लेते हैं उसको बोर्ड के थ्रू अप्रूवल के साथ ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट AGM टाइम पे होगा, ये बिल्कुल गारंटी है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट AGM भी इस बार भी टाइम पे हुआ, ऑन द लास्ट डे हुआ, लेकिन नेक्स्ट AGM हम लोग इससे पहले करेंगे। और हम लोग इसमें भी फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ LIC नेपाल वी हैव कंडक्टेड द AGM इन ऑन टाइम, और हमने कोई भी पेनाल्टी इस बार नहीं दिया है। और आज हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच मौजूद हैं, तो आज ही हम लोग AGM का मिनट्स भी OCR के वेबसाइट पे, ऑफिस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। जो लास्ट कंप्लायंस बच गया है वो भी आज हमारा पूरा हो जाएगा। थैंक यू। और दूसरा जो है बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंड। कभी कभी कैश भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेरेंट कंपनी है ना, उनको कैश तो चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट है ना। वहाँ भी LIC इंडिया का बोर्ड है आस्क मतलब क्या मिल रहा है डिविडेंड के रूप में। तो हम लोग बीच में इसमें सामंजस्य बिठा के चलेंगे, बैलेंस बिठा के चलेंगे। बोनस शेयर भी देंगे क्योंकि हमारे कैपिटल बेस को वो स्ट्रॉन्ग करता है, और दूसरा है हम लोग कैश डिविडेंड भी देंगे, जो कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे लोग करते हैं उनको जो है कैश फ्लो भी बना रहना चाहिए। बाकी आप लोग का जैसा सहयोग रहा है, जिस ढंग से आप लोगों ने सहयोग किया है कंपनी को यहाँ पे जो है मतलब लोग दिल से चाहते हैं, ये मेरी फीलिंग है। अभी आपके सामने हमारे कुछ परफॉर्मर एजेंट्स का भी सम्मान होगा चेयरमैन साहब के हाथों से। दे आर द बिग प्रोड्यूसर ऑफ नेपाल, इतने बड़े प्रोड्यूसर दूसरी कंपनी में नहीं है। तो इनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के हम लोग काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, और आने वाले दिनों में इसको करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।